जर्मनी के खूबसूरत शहर रूडर्सहैम की सैर। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੇ? ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ? ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨ ਨਜ਼ਰ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਨੀਚੇ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਪਰ ਅੱਛਾ ਇਧਰੋਂ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀਨ, ਸੋਹਣਾ ਸੀਨ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੌਜੇ ਕਰਨਾ ਆ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੈਰਾਂ ਸੁਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੇ ਜੇ? ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਸਰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਬਸਰਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾइम कैमरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। नाजरीन आपको रूडर्सहैम के इंतहाई खूबसूरत सीन दिखाए जा रहे हैं और आपको मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा आज नसीर साहब मेरा एक तो मशवरा है। हाँ जी, दसो सर। एक ਤੁਸੀਂ ਮਤਾਲਕ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸੀਨ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। लो जी, दो बंदे फिर मतलब 2 बंदे मैं पाबंद करना बड़ी बात मैं कहना जबरदस्त। इस तरह वैसे मामला तो सही जे कि कोई दोस्त अगर मिल जान ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਕੇ ਹੈਂਡੀ ਸਟੈਂਡ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ 29,000 ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। आवाज वगैरह दुरुस्त सी? जी जी, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। चलो आवाज भी दुरुस्त है तो ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ। ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 2 ਹੀ ਗੈਸਟ ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਲਤੀਫਾ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ रूडर्सहैम ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਸਮ ਹੈ। 3 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 7 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਬਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ? नहीं, जबरदस्त जी। अच्छा, इधर ਦਾ ਸੀਨ कैसा है? वाला बहुत ही खूबसूरत है। लो जी, देख ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਗਰਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰ ਇੱਕ ਲਾਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਗਸਤ ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਟੂਰ। 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਬਸਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਜੇ? ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਚੜਾਈ ਜੇ? ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ YouTube ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਸਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੇ ਕੀਤਾ। ਫੌਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਲੱਗਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ। ਚਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਪੁਲਾਓ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, महमूद अनवर नशाद साडे कोल हुणी 2-4 मिनट तक आएंगे। गलबात होगी, वो तैयारी कर रहे हैं। लाइव प्रोग्राम होएगा। नाजरीन आपको बहुत ही अच्छे प्रोग्राम आप दिखाएंगे। आपको हम अच्छे प्रोग्राम दिखाएंगे। ये आज सीन भी दिखावांगे, लोगों को शेरो शायरी सुनावांगे, लोगों को ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਜੇ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੋਟ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਤੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਖਣਗੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੱਛਲੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ रूडर्सहैम ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੋਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ? जी जी बिल्कुल आ रही है। देख लो जी, ए जे इत्थे कानून ते बस इन्हां दी रो भी काफी है। नाम ही पी सुन लो, पी देख के ना पुलिस
ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਰ ਅगर कोई बंदा ਸਰ करता भी होवे। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਰਸਾਮ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ ਕਿ ਵੀਸਬਾਦਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਰੂਡਰਸੈਮ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾना और मौसम खुलन वाला पट्टी साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया है। अच्छा नाजरीन, ये आपको तारफ करवा रहा हूँ मैं रूडरसैम का। रूडरसैम एक बहुत पुराना शहर है, सदियों पुराना शहर है। ये दरिया के किनारे पे वाक़ है। आपको पता होगा कि उस ज़माना में जब भी आबादियाँ कायम होती हैं उस जगह कायम होती हैं जहाँ दरिया होता है। ये सदियों से इंसान की जद्दोजहद रही है कि पानी की तलाश में वो रहता है कि जहाँ पानी हो और ज़मीन बेहतर हो, क्योंकि उस वक्त खेती बाड़ी या फसल का काम होता है, तो वहाँ फिर अपने डेरे लगा लेता है। दुनिया में जहाँ भी हम जाएंगे दरिया के और समंदर के करीब करीब हमें आबादियाँ नज़र आएंगी। ये तो क्या जानती है। रूडरसैम भी एक दरिया के किनारे है। मैं इस वक्त दरिया के किनारे खड़ा हूँ, तो ये रूडरसैम शहर देख लें, ये ऊपर अंगूरों के बाग हैं और यहाँ फिर आबादी हो गई ऐसा ऐसा जिस तरह भी तरीक़ेकार होता है। तो मैं आपको दरिया के किनारे खड़ा होकर रूडरसैम का बताता हूँ। रूडरसैम एक खूबसूरत जगह पे है, ये राइन वैली कहलाती है। जो हमारे नए नाजरीन आए उनको बताने के लिए, राइन वैली से मतलब है कि दरिया के ऊपर जो आबादियां कायम हैं तकरीबन 100 किलोमीटर के ऊपर दाएं बाएं। मैं अब आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। ये दरिया है, ये दरिया है, सूरज पड़ रहा होगा, लेकिन ये दरिया के परली तरफ भी आबादी है, दरिया के यहाँ भी आबादी है। ये दरिया तकरीबन अगर हम लगाएं 1.5 से 2 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। गहराई ज़्यादा नहीं है नाज़रीन, इसकी ज़्यादा गहरा नहीं ये ज़्यादा करते, वो इसलिए गहरा पानी नहीं करते इसका कि अगर जब सर्दियों में या जब भी पानी कम होगा तो फिर वो एक छोटा सा खाला सा बन जाएगा। इसलिए इन्होंने गहराई इतनी की है कि ताकि शिप आसानी से चल सके। तो और चौड़ाई थोड़ी सी की है ताकि पानी फैल सके और किनारों तक आ जाए, एंजॉय करें। और यहाँ फिर मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं सैर के लिए। तो ये देखें, ये शिप है, ये मुकामी है, ये बाहर से नहीं आया। ये जो आपको शिप नज़र आ रहा है ये यहाँ का नज़र आ रहा है। और अभी जब अगले महीने मार्च से यहाँ फिर सीज़न शुरू हो जाता है, मार्च से लेकर सितंबर अक्टूबर तक तकरीबन यहाँ सीज़न रहता है। और जो जोबन होता है मई जून जुलाई। और किसी ज़माना में जापान के और अमेरिकन लोग बड़े आते थे, अब भी आते हैं। तो क्योंकि ये एक पुरअमन मुल्क और पुरअमन शहर है रूडरसैम, और ख़ूबसूरत जगह पे वाक़ है, सस्ता भी है। और फ्रैंकफर्ट जो हमारा फ्लूगाफन है जिसको हम एयरपोर्ट कहते हैं, वो उसके करीब हम रहते हैं। ये जो सा हमारा एयरपोर्ट है उससे 60 किलोमीटर, फ्रैंकफर्ट से भी 60 किलोमीटर, और उसके दरमियान एक वीसबादन शहर आता है। किसी ज़माने में आर्मी की बेस होती थी, अमेरिकन एम्बेसी की बेस, अब भी वो कायम है। वो यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर है। फिर अगर हम इसी दरिया के ऊपर चले जाएं सीधा, आगे आ जाता है कोबलेंस। कोबलेंस एक मशहूर शहर है, पुराना तारीखी शहर है। वहाँ भी एयर आर्मी की बेस थी। तो वो ये दरिया कोबलेंस को टच करते करते फिर ये हॉलैंड चला जाएगा। ये थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री बताई है कि ये दरिया जो निकलता है स्विट्ज़रलैंड के चश्मों से निकलता है। मैंने वो जगह देखी है जाके स्विट्ज़रलैंड में। वहाँ से ये जर्मनी में दाखिल हो के फिर ये चला जाएगा हॉलैंड के समंदर में जाके गिर जाएगा। हॉलैंड के समंदर भी मैंने देखे हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी मैंने सुनानी थी ताहिर भट्टी साहब की फरमाइश पे। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा थाईलैंड चलेंगे, या थोड़ा सा हम शेर व शायरी सुनेंगे। भट्टी साहब है जे जी जी अच्छा, तो थोड़ा जो आ गया तो पता लग गया, मालूमात आ गई। जी जी माशाल्लाह, बहुत नाज़रीन, ये जबरदस्त। थे मेरे साथ चलें जी, ताहिर नाज़रीन। महमूद भट्टी साहब एक मशहूर व मारूफ टिक टॉकर हैं। अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, अच्छे क्लिप भेजते हैं, हर दिल अजीज़ दोस्त हैं। इनकी फरमाइश पे मैंने रूडरसैम के आपको मालूमात दी। उम्मीद है कि आपको रूडरसैम का इलाका पसंद आएगा। अगर आप हैसन सूबे में हैं या फ्रैंकफर्ट के नज़दीक हैं तो रूडरसैम दूर नहीं है। आप आइए, फैमिली के साथ आइए, यहाँ बच्चों के साथ बहुत अच्छे अच्छे पार्क हैं, खेलने की जगह है। हिरन भी खुले हुए मिलते हैं, बच्चे उनसे खुश होते हैं, हिरन से खेलते हैं, जानवरों से खेलते हैं। तो ये इलाका बहुत ही खूबसूरत सैरगाह है।
फिर मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।